Hello students, I Yash Santwani from Shiv Jyoti Educational Group. I welcome you all to this video lecture for class 11th accountancy. So students, let's start with a chapter that is chapter number 10 as per the NCERT, and that is financial statement with adjustments. And if we talk about DK Goyal, then it will be chapter number 22. Class, we have already covered almost 17 adjustments of this particular chapter in our previous video lectures, and now we are at the last part of the chapter at the with the last adjustments. At the adjustment number 18 we are having with us is the manager's commission on the net profit. Then at the adjustment number 19 we are having wrong treatment of revenue and capital expenditure. Adjustment number 20, it is goods sold and dispatched but omitted to be recorded. Adjustment number 21, it will be goods purchased and included into stock but omitted to be recorded. And your adjustment number 22, that the last one and the very important one, it will be goods sold on approval basis. So class, now let's begin with that lecture with the adjustment number 18, and that is your manager's commission. Manager's commission on net profit. Basically class, we have already gone through the calculation of the net profit. हम लोगों ने पहले वाले जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 21, उस चैप्टर में हम लोगों ने नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करना सीखा था. ओके, अब यहाँ पे हमें हमारे जो भी हमारा कंसर्न मैनेजर होता है उसको उस नेट प्रॉफिट के ऊपर हम लोगों को कुछ ना कुछ कमीशन देना पड़ता है. एंड ये जो कमीशन आप कैलकुलेट करते हैं, इसके पहले हमारे पास में दो अलग अलग सिचुएशंस होती हैं. So case A we are having with us is your manager's commission on net profit before charging such commission. On net profit before charging such commission. Basically this will be the default condition. That means if there is no information regarding the formula for before charging such commission or after charging such commission, then we have to use this one, that is manager's commission on net profit before charging सच कमीशन. यानी कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो फिर हमें बिफोर वाले फॉर्मूले को ही यूज में लेना है. एंड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दिस कमीशन विल बी नेट प्रॉफिट इनटू rate of commission, net profit into rate of commission divided by 100. This will be the formula for the calculation of your manager's commission and before charging such commission, or you can say the by default case. Okay, then the next we are having with us is your case B, and that is manager's commission on net profit. Manager's commission on net profit after charging such commission. Now class, for such kind of adjustments, the language which is provided to you in the question will be that you have to provide a commission to the manager as per the rate of 10% on profits after charging such commission. मतलब वो एक ऐसे नेट प्रॉफिट के ऊपर कमीशन चार्ज करना चाह रहे हैं जिसमें से खुद मैनेजर कमीशन माइनस हो गया हो. सो क्लास, उसको देखिए, हम लोग अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट हुआ नहीं है तो हम उसको माइनस कैसे करेंगे. तो उसको आफ्टर वाला प्रॉफिट बनाने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, एंड दैट इज योर नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन. Net profit into rate of commission divided upon 100 plus rate. For an example, मान लीजिए वो बोलता है that you have to provide a commission to the manager at the rate of 10% on profit after charging such commission. तो हम लोग क्या करेंगे क्लास, हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन, दैट इज योर 10, और 10% होता है तो डिवाइड में 100 आना है. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 10/100 प्लस 10 हो जाएगा वो. So the formula will be net profit into 10/110. इस तरीके से आप उसको आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन.
इज इट क्लियर? और अगर कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है, सपोज बोलते हैं दैट यू हैव टू प्रोवाइड द मैनेजर्स कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन योर नेट प्रॉफिट, कुछ भी नहीं बोला है कि बिफोर है या आफ्टर है, तो फिर बाय डिफॉल्ट आपको ये बिफोर वाला फॉर्मूला लगाना है, दैट इज योर नेट प्रॉफिट इंटू 10/100 या वॉट एवर द परसेंटेज ऑफ द मैनेजर्स कमीशन विल बी, तो डिवाइड में सिर्फ 100 आ जाएगा। इज इट क्लियर? दिस इज द बेसिक डिफरेंस एंड इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, ये एक एक्सपेंस की तरह है। तो फिर व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू राइट ऑफ इट थ्रू योर P&L अकाउंट। आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एकदम लास्ट में जाकर मेंशन करेंगे टू मैनेजर्स कमीशन, इस एक्सपेंस को आप रिकॉर्ड करेंगे। एंड फॉर सच काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स वी आर हैविंग these adjustments at from the illustration number 17, illustration number 17, 16, ये जितने भी एडजस्टमेंट्स है क्लास, यहाँ पर सब में हमारे पास में मैनेजर्स कमीशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हैं। इज इट क्लियर? ओके, सो यू हैव टू गो थ्रू देम। राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस एडिशन ऑफ DK Goel एज यू कैन सी। ओके, उसके बाद हम आते हैं अब हमारे नेक्स्ट पे। आप इलस्ट्रेशन नंबर 17 में भी अगर देखेंगे तो लास्ट में जाकर आपके पास में लिखा हुआ आ रहा है मैनेजर्स कमीशन टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। अब यहाँ पर भी देखिए दो बातें हैं, अगर आप मैनेजर्स कमीशन पे कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो कैश में से भी डिडक्ट हो जाएगा, और अगर आप उसको आउटस्टैंडिंग रख रहे हैं तो फिर आपके पास में बैलेंस शीट के अंदर करंट लाइबिलिटीज में वो शो होगा। इज इट क्लियर? डुअल एडजस्टमेंट करना पड़ता है हम लोगों को, तो या तो आप अगर पेमेंट कर देंगे तो कैश या बैंक में से वो डिडक्ट हो जाएगा अमाउंट, और अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो इट विल बी शोन एज योर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अंडर द बैलेंस शीट, इन द बैलेंस शीट अंडर योर करंट लाइबिलिटीज। इज इट क्लियर? ओके, तो एक तो करंट लाइबिलिटीज में शो करेंगे और दूसरी तरफ आप उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। ऑलराइट क्लास, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ this particular chapter and that is your adjustment number 19। 19th एडजस्टमेंट है क्लास हम लोगों के पास में। इसके लिए मैं आपको बता दूं, हमने एक चैप्टर पढ़ा था दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो वहां पे एक तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स था और एक उसके अलावा हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज में भी ये वाले एडजस्टमेंट्स देखे थे क्लास। हम लोगों ने जर्नल एंट्री में देखा था कि अगर हम कोई भी एक्सपेंडिचर, कोई भी एक्सपेंस कर रहे हैं असेट को परचेज करते टाइम, ठीक है, उसको यूज में लाने तक के जितने भी खर्चे होंगे वो सब कैपिटलाइज होने चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, यू हैव परचेज अ मशीनरी ऑफ ₹1 लाख एंड यू हैव पेड ₹10,000 फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन, तो आपको यूज में लाने के लिए उस 10,000 को भी पेमेंट करना पड़ा, तो आपकी मशीनरी जो है वो 1,10,000 रुपीज की हो गई है। इज इट क्लियर? ओके, यानी कि जो 10,000 का आपने ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस करा, आप उसको रेवेन्यू नहीं मानोगे, आप उसको कैपिटल नेचर का ही मानेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर 19 यही बोल रहा है हमारे पास में 19th एडजस्टमेंट बोलता है ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस, कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस। क्लास एक चीज़ समझिए आप कि अगर आपने 10,000 रुपीज़ का एक एग्जाम्पल जो हम लोग फ्रेम कर रहे हैं, लिख लेते हैं उसको भी। लेट अस हैव एन एग्जाम्पल दैट वी आर परचेजिंग अ मशीनरी, वी हैव परचेज अ मशीनरी फॉर ₹1 लाख। इज इट क्लियर? सो दिस इज योर कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। ओके, और ये जो एक्सपेंडिचर है क्लास, ये आपका डायरेक्टली रिकॉर्ड होगा बैलेंस शीट में, पहली बात तो ये हो जाएगी। उसके अलावा इसके ऊपर जो भी डेप्रीसिएशन चार्ज होना है वो डेप्रीसिएशन चार्ज होगा आपके पास में आपके P&L के अंदर। इज इट क्लियर? अब इसी के साथ में मान लीजिए आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन भी पे करा है, यू हैव पेड अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ₹10,000 अलॉन्ग विद दिस, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन आप पे कर रहे हैं ना क्लास, ये भी आपका कैपिटल नेचर का ही होना चाहिए। और अगर ये भी कैपिटल नेचर का होना चाहिए तो फिर इसके एडजस्टमेंट्स भी बिल्कुल यही होंगे, यानी कि बैलेंस शीट में, उसके बाद में उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग के फिर वो P&L में जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने इसको रॉन्गली रेवेन्यू नेचर का ट्रीट कर लिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर क्लास 12 पार्टनरशिप अकाउंट्स ऑल्सो, वहाँ पर भी ये एडजस्टमेंट्स आएंगे आपके पास में। हमने इसको रेवेन्यू नेचर का मान लिया क्लास। अब अगर आपने इसको रेवेन्यू नेचर का मान लिया है तो ये पहली बात तो इसकी कॉस्ट में ऐड नहीं हो पाया, कॉस्ट में ऐड नहीं हो पाया तो बैलेंस शीट में नहीं गया, बैलेंस शीट में नहीं गया तो आपका डेप्रीसिएशन कम चार्ज हुआ है।
आपको डेप्रीसिएशन 1,10,000 पे लगाना था, लेकिन आपने डेप्रीसिएशन लगाया सिर्फ 1,00,000 रुपीज़ पे। ये तो पहली गलती हो गई, ठीक है। और उसकी वजह से जो हमारा प्रॉफिट है वो ज़्यादा शो हो रहा है। पहली चीज़ तो ये हो गई डेप्रीसिएशन के अमाउंट से। सेकंड मिस्टेक जो हमने करी इसके अंदर वो ये करी कि रेवेन्यू नेचर का ट्रीट कर लिया इसको, और रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करने के बाद में हमने इसको डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर दिया। तो यानी कि जो अमाउंट ये 10,000 प्रपोर्शनेट बेसिस पे P&L में रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन हमने 10,000 रुपीज से डायरेक्टली इसको रिकॉर्ड कर दिया। तो ये कुछ मिस्टेक हो जाती है जिसको हमें फिर एडजस्ट करना पड़ता है, एंड वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट ऑन पेज नंबर 22.52 एज वेल एज ऑन पेज नंबर 22.54। तो वहाँ पर आप देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। Wages include rupees 20,000 spent on the installation of new machine. In order to rectify this mistake, 20,000 will be deducted from wages and added back in your machinery. Okay. Goods purchased for the construction of building were debited to purchase account. यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ जो भी आप गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है, परचेज कर रहे हैं आप गुड्स, लेकिन उसको आप अपने बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हम उसे परचेज में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम उसको बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड करेंगे। तो जो हम एंट्री कर रहे होंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, उसको रेक्टिफाई करना है अब आपको, ठीक है। उस परचेज की जगह पे अब आपको बिल्डिंग को बढ़ाना है, तो हम एंट्री कर देंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। इज इट क्लियर? इन शॉर्ट, बैलेंस शीट में असेट साइड पर आपको अपनी असेट्स की वैल्यू बढ़ानी है, और प्रॉफिट एंड लॉस में से आपको अपनी परचेज में से डिडक्ट करना है, या फिर जो भी एक्सपेंस आपने माना, जैसे हमने ऊपर वेजेस का एग्जांपल देखा, अगर वेजेस में आपने ट्रीट कर रखा है तो अब आप वेजेस में से डिडक्ट कर देंगे उस चीज़ को। इज इट क्लियर? तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे भी इंपैक्ट आएगा और आपकी बैलेंस शीट में भी इंपैक्ट आएगा। ऑलराइट क्लास। और जो डेप्रीसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे वो अब आप अपने एडजस्टेड वैल्यूज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, यानी कि एज पर आर एग्जाम्पल, पहले जो डेप्रीसिएशन हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे 1 लाख रुपीज़ पे, अब आप डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करोगे 1,10,000 रुपीज़ पे, क्योंकि इसके अंदर 1 लाख रुपीज़ की तो आपकी कॉस्ट आ गई है, और 10,000 रुपीज़ जो उसका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस था वो भी ऐड करके फिर आप अपना एक्चुअल डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे। इज इट क्लियर? और प्रॉफिट एंड लॉस में से अपना ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस को कम कर देंगे आप, तो आपका प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा 10,000 से, और डेप्रीसिएशन वाले जो अमाउंट होगा उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये मेजर इंपैक्ट आता है। 12th क्लास में बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट्स है इसके ऊपर पार्टनरशिप अकाउंट्स में, तो आप उसको ध्यान में रखेंगे। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट वी आर हैविंग इलस्ट्रेशन नंबर 19 एज वेल एज इलस्ट्रेशन नंबर 20 विद अस। 20, 21 इन सब में ये वाले एडजस्टमेंट्स हमारे कवर हो रहे हैं क्लास, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है, वी आर हैविंग विद अस इज दी वेजेस इंक्लूड रुपीज 2,000 इंकर्ड फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी ऑन 1/4/2016। नाउ दे हैव प्रोवाइडेड अस द डेट एज वेल, इन्होंने डेट भी हमें दे रखी है इलस्ट्रेशन नंबर 19 पे, ओके, पेज नंबर 22.54 इन्होंने डेट दे रखी। डेट क्यों दी होगी क्लास? टू कैलकुलेट द डेप्रीसिएशन। यहाँ पे 2,000 रुपीज जो वेजेस हमने पे करे, दैट वाज पेड फॉर इरेक्शन ऑफ द मशीनरी, therefore this 2,000 rupees is to be added back to your cost of the machinery, यानी कि मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए और उसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज होना चाहिए। तो व्हाट दे हैव डिड इज, हम लोगों ने पहले तो वेजेस में से लेस कर दिया हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, ओके। तो वेजेस में से लेस करा, और साथ में हम लोगों ने हमारी बैलेंस शीट के अंदर हमारी असेट की कॉस्ट में उसको ऐड ऑन करा, और फिर उसके बाद में उसके ऊपर डेप्रीसिएशन हम लोगों ने चार्ज करा। ये एडजस्टमेंट्स, ये मेजर एडजस्टमेंट्स है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। इज इट क्लियर? ओके, सो यू हैव टू गो थ्रू देम एज वेल। नाउ let's start with our next topic of this particular chapter, and that is adjustment number 20. adjustment number 20 है क्लास हम लोगों के पास में, जो कि है goods sold and dispatched but omitted to be recorded, यानी कि हम लोगों ने गुड्स सोल्ड कर दिए, गुड्स को हम लोगों ने बेचा है, ठीक है, हमने हमारे डेटर्स को गुड्स बेचे हैं। हम लोग गुड्स सेल करते हैं तो हमारे पास में डेटर्स नाम की करंट एसेट बढ़ती है। इज इट क्लियर? ओके, तो गुड्स वहां पे पहुंच भी गए हैं, तो क्लास पहली बात तो यहाँ पर रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट लगता है। आप अपना रेवेन्यू तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक आपके गुड्स का ट्रांसफर ना हो जाए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर ना हो जाए या ओनरशिप ट्रांसफर ना हो जाए। तो अगर गुड्स वहां पे पहुंच गए हैं, दैट मीन्स जो उस गुड्स का जो ओनर है वो हमारा कस्टमर बन गया है,
अगर कस्टमर बन गया है तो आपको अपना सेल्स को रिकॉर्ड करना है, लेकिन आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। तो इट इज़ वेरी मच सिंपल, जैसे कि हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में देखा था, ठीक है। तो वहाँ पर भी हमारे पास में था क्लास कि अगर आपने मान लीजिए सेल्स को रिकॉर्ड नहीं करा है, ठीक है, ओमिशन है, दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 20, ओमिशन है एडजस्टमेंट का, आपने गुड सेल करे हैं रिकॉर्ड नहीं करे, तो अब रिकॉर्ड कर लीजिए, क्रेडिट सेल्स है अब रिकॉर्ड कर लीजिए। तो अब रिकॉर्ड करेंगे तो डेटर्स नाम की एसेट बढ़ जाएगी हमारे पास में, देयरफॉर डेटर्स अकाउंट डेबिट, और साथ में सेल्स नाम की इनकम बढ़ जाएगी, तो आप कर देंगे टू सेल्स अकाउंट। इज इट क्लियर? सो दिस विल बी द नॉर्मल एडजस्टमेंट एंट्री बाय द सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस से एंट्री होगी हमारी। इज इट क्लियर? ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन, तो बैलेंस शीट में आप अपने करंट एसेट में डेटर्स को इंक्रीज करेंगे। इज इट क्लियर? जो भी आपकी बैलेंस शीट चल रही होगी, सपोज दिस इज योर बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में यहाँ पर आपके असेट्स हैं, तो असेट्स में आप डेटर्स के अंदर ऐड ऑन कर देंगे, डेटर्स में ऐड कर देंगे। इज इट क्लियर? और उसी के साथ में आपका जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, तो उसमें जो ट्रेडिंग पार्ट है, सपोज दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर आपके पास में बाय सेल्स है, इस बाय सेल्स में आप यहाँ पर ऐड ऑन कर देंगे। ये दो ट्रीटमेंट आ जाएंगे हमारे पास में। क्लियर है बात? ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग विद अस इज योर गुड्स परचेज एंड इंक्लूडेड इनटू स्टॉक बट omitted to be recorded। अब ये तो हमारे पास में सेल्स का ट्रांजेक्शन था। नेक्स्ट वी आर हैविंग विद अस इज योर गुड्स परचेज, यानी कि हमने खरीद लिया, उसको हमने स्टॉक में भी रिकॉर्ड कर रखा है, ओपनिंग या क्लोजिंग कुछ भी कह सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में ही होगा वैसे, ठीक है। खरीद लिया है, स्टॉक में रिकॉर्ड कर रखा है, लेकिन अभी तक भी हम लोगों ने उसकी जर्नल एंट्री नहीं पास करी, और अगर जर्नल एंट्री पास नहीं करी तो फिर वो हमारी बुक्स में भी शो नहीं हुआ है। ओके, दिस इज अगेन अ केस ऑफ योर ओमिशन, ये भी एक तरीके का ओमिशन है। तो आपने गुड्स परचेज करे हैं और रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज परचेज अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, दिस विल बी योर एडजस्टमेंट नंबर 21, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, and class this you have to record by the cost of goods। जब हम सेल्स रिकॉर्ड करते हैं तो हम सेलिंग प्राइस से रिकॉर्ड करेंगे, और अगर हम परचेज रिकॉर्ड करते हैं तो फिर हम लोग उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। इज इट क्लियर? इम्पैक्ट क्या आएगा कि हमारे जो भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, वॉट एवर द ट्रेडिंग अकाउंट यू आर प्रिपेयरिंग ओवर देयर, यू जस्ट हैव टू एड बैक इन योर परचेज, परचेजेस में आप इसको ऐड करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, एंड इन दी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड में आप अपने क्रेडिटर्स को ऐड कर देंगे, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे अब आपके। ये एडजस्टमेंट्स हमें करने हैं। ऑलराइट क्लास, दिस वाज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट नंबर 21। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर द मेन एडजस्टमेंट, एंड दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 22, और ये है क्लास हम लोगों के पास में गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। पहले हम इसके बारे में समझते हैं कि ये है क्या। कई बार ऐसा होता है क्लास कि हमारे जो क्लोज कस्टमर्स हैं या जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, हम लोग उनको गुड्स सोल्ड आउट कर देते हैं अप्रूवल बेसिस पे। ये चीज़ें होती है ज़्यादातर, जैसे कोई क्लॉथ मर्चेंट है या कोई मर्चेंडाइज है, ठीक है, तो उन्होंने सपोज कोई ड्रेसेस सोल्ड आउट करने का काम है उनका, रीसेलर है, ट्रेडिंग करते हैं ड्रेसेस की, ठीक है। अब हमने हमारे कस्टमर को गुड्स दे दिए, 3-4 वैरायटी की ड्रेसेस दे दी, उन्होंने बोला है कि इसमें से सर हम 1 या 2 रखेंगे, या अगर हमें अच्छे लगते हैं तो हम सारे रख लेंगे, तो वो अप्रूवल बेसिस पे सोल्ड हुए हैं, अभी कन्फर्मेशन नहीं आया है। इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ पे 2 कंडीशंस होती हैं, या तो वो गुड्स अप्रूव्ड हो जाएंगे तो हम उसको एज अ सेल्स रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है, और अगर वो अप्रूव नहीं होते हैं तो फिर हमें उन सेल्स को कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए वी आर हैविंग दिस एडजस्टमेंट ऑन पेज नंबर 22.64 of DK Goel, एडजस्टमेंट नंबर 22। नाउ द मेन पार्ट इज कि अगर हमारे पास में अगर इसका अप्रूवल नहीं आता है, विच इज़ द केस इन द बुक्स, तो हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमने उसको सेल्स रिकॉर्ड कर लिया था। देखिए, आपने अगर उसको सेल्स में रिकॉर्ड करा था तो आपने डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया होगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये आप लोगों ने कर रखा था। बट द मेन पार्ट इज दैट अप्रूव्ड नहीं हुआ, अप्रूवल नहीं आया है क्लास हमारे पास में, नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू रिवर्स दिस सेल ट्रांजेक्शन।
हम इस सेल ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर देंगे, तो उसके लिए हमें हमारी सेल्स को कम करना पड़ेगा, यानी कि सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और साथ में हमें हमारे डेटर्स को कम करना पड़ेगा, यानी कि डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पर ये वाली सारी चीज़ें होंगी हमारी सेलिंग प्राइस से। इज इट क्लियर? तो अब आप एडजस्टमेंट समझिए क्लास। सबसे पहला एडजस्टमेंट आएगा हम लोगों के पास में हमारे ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग अकाउंट में आप अपनी सेल्स में से रिड्यूस करेंगे, सेल्स में से लेस करेंगे आप, वो भी किस चीज़ को? सेलिंग प्राइस को। यानी कि जो गुड्स अप्रूवल पे गए थे उसको, उसकी जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, जो अब अप्रूव नहीं हो पाए हैं, उसकी जो सेलिंग प्राइस है उससे आप अपनी सेल्स को रिड्यूस करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट। इज इट क्लियर? उसके अलावा अब ये गुड्स हमारे पास आ गए ना क्लास, तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में भी शो होंगे, और स्टॉक जो होता है वो हमेशा हमारे पास में कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो ओवर हेयर द क्लोजिंग स्टॉक विल ऑल्सो बी एडेड बैक। क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे हम लोग इन्हीं गुड्स को, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस पर ऐड होगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे ऐड होगा। ये तो ट्रेडिंग अकाउंट के एडजस्टमेंट्स हो गए। एंड इफ यू टॉक अबाउट द बैलेंस शीट पार्ट, अगर हम बैलेंस शीट पार्ट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में से क्या होगा? हमारे डेटर्स कम हो गए क्लास, तो डेटर्स में से लेस करेंगे और वो भी सेलिंग प्राइस पे लेस करेंगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात, आपका जो स्टॉक चल रहा होगा, जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक चल रहा होगा, इधर भी आपका एड ऑन हो गया है, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक इधर बढ़ गया तो बैलेंस शीट में भी सेम जा रहा है ना, तो बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड हो गया। तो 4 एडजस्टमेंट्स वी हैव प्रोवाइडेड, 4 एडजस्टमेंट्स आर देयर फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। We have sold goods on approval basis, but we have not received any kind of approval. Okay, so for this what we have done is, सबसे पहला सेल्स को कम करा, सेल्स को रिड्यूस करा सेलिंग प्राइस से। सपोज मान लीजिए मैंने गुड्स बेचे थे 100 रुपीज़ की सेलिंग प्राइस के, और उसकी कॉस्ट जो आ रही है, कॉस्ट चल रही है उसकी 80 रुपीज़ की, ठीक है। अब ये अप्रूव नहीं हो पाए हैं, सो व्हाट आई डू इज सेल्स में से 100 रुपीज़ लेस करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक में 80 रुपीज़ ऐड कर दूंगा, क्योंकि मेरी कॉस्ट बढ़ गई है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया है, ये तो ट्रेडिंग का काम हो गया। इधर बैलेंस शीट में डेटर्स में से सेलिंग प्राइस यानी कि 100 रुपीज़ के डेटर्स को रिड्यूस करूंगा, और स्टॉक में 80 रुपीज़ ये ऐड ऑन करूंगा। तो अब आप इम्पैक्ट देखिए क्लास, अगर ये तो एडजस्टमेंट हो गया, इसका इम्पैक्ट समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स, तो वी मस्ट बी फेमिलियर विद द आउटकम ऑफ सच काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, एडजस्टमेंट रटना अलग बात है, बट हमें इसका इम्पैक्ट समझना बहुत जरूरी है। आप एक चीज देखिए, अगर मैंने अपनी सेल्स को 100 रुपीज़ से रिड्यूस करा है और मैंने अपने क्लोजिंग स्टॉक को 80 रुपीज़ से प्लस करा है, दिस इज माई इनकम साइड, दिस इज माई इनकम साइड। इज इट क्लियर? तो मेरी इनकम 100 रुपीज़ से बढ़ गई, 100 रुपीज़ से कम हो गई और 80 रुपीज़ से बढ़ गई। इन शॉर्ट, मेरा जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट यहाँ पर आया है वो रिड्यूस हो गया होगा 20 रुपीज़ से, ये रिड्यूस हो गया 20 रुपीज़ से, ठीक है। ऑलराइट क्लास, अब आप कहेंगे कि सर इसको कैसे मैच करेंगे हम लोग, तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है बैलेंस शीट में भी। यहाँ पे प्रॉफिट रिड्यूस हुआ ना 20 रुपीज़ से, तो प्रॉफिट गया इधर कैपिटल के अंदर, यहाँ पे इस कैपिटल में भी तो ऐड बैक होता है ना ये प्रॉफिट, कैपिटल में ऐड करेंगे हम लोग प्रॉफिट, तो यहाँ पे भी 20 रुपीज़ का डिडक्शन आ गया हमारे पास में, यानी कि हमारी लाइबिलिटीज 20 रुपीज़ से ऑटोमेटिकली कम हो गई, और इधर की इधर ही देखिए आप, यहाँ पर भी 20 रुपीज़ रिड्यूस हो चुके हैं, इसलिए बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली मैच होगी। देखिए डेटर्स 100 रुपीज़ से कम हो गए, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक 80 रुपीज़ से बढ़ गया। इन शॉर्ट 20 रुपीज़ से मेरी करंट एसेट्स भी कम हो गई, तो यहाँ पे लाइबिलिटीज पे भी फर्क आ गया 20 रुपीज़ का, और करंट एसेट्स पे भी फर्क आ गया, तो हमारी बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली मैच हो गई, हमें कुछ भी एडिशनल करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर है? दिस इज द फाइनल आउटकम ऑफ दिस सिंगल एडजस्टमेंट, एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एज पर द 11th class syllabus. Alright class, so class, as I told you that the topic of goods and service tax we will be discussed in the end of the chapter. So now let's start with that particular topic, and that is your GST, goods and service tax. The full form of GST is goods and service tax. Class, basically हमारी कंट्री में पहले दो तरीके के ट्रांजैक्शन, दो तरीके के टैक्स लगा करते थे परचेज और सेल करने के ऊपर। ओके, ट्रेडिंग कंसर्न देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न देख रहे हैं, तो रॉ मटेरियल या गुड्स परचेज करते हैं और साथ में सेल करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास में लगता था वैट, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स,
और अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री होती थी तो वो लोग दिया करते थे सर्विस टैक्स। इज इट क्लियर क्लास? बट all of those things now has been replaced by GST, that is your goods and service tax. Okay, so let's have a brief discussion on this particular topic. First of all, let me tell you one thing कि हमारे जो परचेज ट्रांजेक्शन्स होते हैं, whenever you are purchasing goods और you are purchasing some of the fixed assets, और अगर उसके ऊपर GST चार्ज हो रहा होगा तो फिर इसको आप चार्ज करते हैं क्लास इनपुट GST के नाम से, यानी कि यहाँ पर जो GST लगेगा that is your input GST. Is it clear? फिर ये input GST को क्लास दो अलग अलग तरीके से डिवाइड करा गया है यहाँ पे हमारे पास में। पहला आता है क्लास हम लोगों के पास में विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन्स, विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन्स, विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन्स आते हैं, और उसके अलावा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स आते हैं क्लास, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स। यानी कि सपोज फॉर एन एग्जांपल कोई फर्म है जो राजस्थान में रजिस्टर्ड है, तो अगर वो राजस्थान में बिजनेस कर रहे हैं तो उसको विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन्स में काउंट करेंगे, और अगर आउट ऑफ द राजस्थान वी आर डीलिंग तो फिर उसको इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स में काउंट करेंगे। ओके, विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन्स के अंदर जो इनपुट GST होता है वो फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है क्लास। द फर्स्ट इज योर इनपुट CGST, यानी कि इनपुट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और फिर उसके बाद में एक आ जाता है क्लास हम लोगों के पास में इनपुट SGST, यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इज इट क्लियर? तो इनपुट में भी हमारे पास में दो हैं, इनपुट CGST और इनपुट SGST। वॉट एवर द रेट ऑफ GST, सपोज हम बोलते हैं कि GST रेट चल रही है क्लास हम लोगों के पास में 10%, ओके, तो ये 5% तो CGST चार्ज हो जाएगा और 5% SGST, यानी कि हाफ हाफ उसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। ओके, और जो ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्लास IGST, यानी कि इंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, इज इट क्लियर? और एक क्लास, सो ये तो है परचेज के ट्रांजेक्शन्स के रिगार्डिंग। कोई अगर आप परचेज कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि आप लोगों ने गुड्स परचेज करे 1 लाख रुपीज़ के, 1 लाख रुपीज़ के गुड्स परचेज करें हम लोगों ने, और उस पर जो GST लगाना है वो लगाना है हम लोगों को 10%। राजस्थान में वी आर परचेजिंग राइट नाउ। ओके, सो व्हाट विल बी द एंट्री फॉर दिस? आप देखिए एक बार, देखिए परचेज अकाउंट तो आपका डेबिट होगा, तो आप करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। ओके, और उसके साथ में GST भी आपको पे करना पड़ रहा है, तो ये भी आपके लिए एक्सपेंस है, तो इसमें आप क्या कर लेंगे, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, उसके अलावा इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और फिर उसके बाद में टू कैश या फिर आपका टू क्रेडिटर्स जो भी आ जाएगा, या तो टू कैश या फिर टू क्रेडिटर्स। अगर वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो टू क्रेडिटर्स, और अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो फिर टू कैश। ओके, एंड सपोज गुड्स हमारे पास में 1 लाख रुपीज़ के थे, इसमें GST इंक्लूड नहीं था। कई बार जो हमारे पास में प्राइसेज आती हैं वो इंक्लूसिव ऑफ GST भी होती है, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज़ का अगर हम लोग 5% कैलकुलेट करते हैं तो इनपुट CGST विल बी ऑफ 5000 एंड इनपुट SGST विल बी ऑफ 5000। तो टोटल जो आपको पेमेंट करना पड़ रहा है वो कर रहे हैं अपन 1,10,000 रुपीज़ का, यानी कि टैक्स मिलाकर वो गुड्स हमें कितने के पड़ रहे हैं, 1,10,000 रुपीज़ के। ओके, लेकिन हम हमारे ट्रेडिंग में जो परचेजेस रिकॉर्ड करेंगे वो हम कॉस्ट प्राइस पे यानी कि 1 लाख रुपीज़ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर क्लास? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेल्स ट्रांजेक्शन्स। अगर हम लोग सेल के ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट सम ऑफ द सेल्स ट्रांजेक्शन्स, तो क्लास सेल्स में भी सेम चीजें हैं। सेल्स में भी हमारे पास में सिर्फ यहाँ पर इनपुट की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में आउटपुट GST। यहाँ पर इनपुट था तो सेल्स पर आएगा आउटपुट, ठीक है। परचेज के टाइम पर आपको GST का पेमेंट करना पड़ता है और सेल्स के टाइम पर आप GST कलेक्ट करते हैं, तो इसलिए उसको आउटपुट बोल रहे हैं हम लोग। और फिर उसके बाद में यहाँ पर भी आपके पास में वही स्टेट ट्रांजेक्शन्स और एक इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर ये भी IGST कहलाएगा, आपका आउटपुट IGST कहलाएगा, और ये स्टेट वाला जो है उसको दो पार्ट में बांटेंगे तो ये बन जाएगा आपका आउटपुट CGST, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। इज इट क्लियर क्लास?
नाउ द मेन पार्ट इज कि हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए एक चीज समझाता हूँ मैं आपको, आई होप ये सब क्लियर हो गया है। जब आप सेल्स करेंगे तो हम आउटपुट यानी कि हम कलेक्ट करेंगे तो उसको क्रेडिट करेंगे, और जब हम गुड्स को खरीद रहे हैं तो हमें इनपुट नाम का एक्सपेंस हो रहा है तो हम इसको डेबिट करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ क्लास एक चीज देखिए कि ये जीएसटी का पेमेंट हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को करना है। इन शॉर्ट हमारे लिए ये एक तरीके का पेमेंट है जो हमें करना है, बच रहा है अभी। तो यहाँ पे क्या सिस्टम चलता है मैं आपको समझाऊं। देखिए सपोज आपने गुड्स परचेज करे, गुड्स परचेज करने पर इसको हम लोग इंटर एडजस्टमेंट बोलते हैं, जो अभी हम पढ़ रहे हैं दैट इज योर इंटर एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आपने गुड्स परचेज करे हैं और आपका CGST आया है 100 रुपीज़ का, और आपका दिस इज योर इनपुट CGST, आई मस्ट से इनपुट SGST आया है आपका 100 रुपीज़ का। ठीक है, ये है हमारे लिए लाइबिलिटी, इसका अभी हमें पेमेंट करना बचा है। इनपुट का मतलब आपको उसका पेमेंट करना है। ऑलराइट क्लास, ठीक है। अब मान लीजिए इसी के साथ में जब आपने गुड्स सोल्ड आउट करे तो आपके पास में आउटपुट CGST आ रहा था 150 रुपीज़ का, और उसके साथ में आउटपुट SGST ये आ रहा था क्लास आपके पास में 150 रुपीज़ का। तो हम लोग इसको इंटर एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे हम? देखिए हमारी लाइबिलिटी के लिए व्हाट वी कैन डू इज, ये तो आपने पेमेंट कर दिया ना, एक्चुअल लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए अब क्या करना है, देखो आपको 150 का पेमेंट करना है गवर्नमेंट को। हमने सेल्स पर कलेक्ट करा 150 रुपीज़, और हम लोग उसके अंदर 100 रुपीज़ ऑलरेडी पे कर चुके हैं जब हमने गुड्स खरीदे थे। तो व्हाट वी कैन डू इज वी जस्ट डिडक्ट दिस आउटपुट CGST में से हम लोग हमारा इनपुट CGST माइनस करेंगे, यानी कि हमारे पास में 150 का आउटपुट है और 100 का हम ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं। तो यानी कि 50 रुपीज़ का पेमेंट अब करना है, तो ये आएगी हम लोगों की एक्चुअल करंट लाइबिलिटी, जो कि आपके बैलेंस शीट में शो हो जाएगा। इज इट क्लियर? सिमिलरली हम हमारे SGST को SGST से एडजस्ट करेंगे। 150 का SGST पे करना था और 100 का ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो 50 रुपीज़ का SGST नाम की करंट लाइबिलिटी शो हो जाएगी। एंड दिस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट वी आर हैविंग विद अस ऑन दी पेज नंबर 22.28। ओके, यहाँ पर है आपके पास में, आप इसको देखिएगा ढंग से। पेज नंबर 22.27 और पेज नंबर 22.28 इन दोनों ही पेजेस पे है। साथ में जो हम लोगों ने एडजस्टमेंट देखे रिवर्स ट्रांजैक्शन के, जहां पर आप लोग अपनी परचेज को कई बार रिवर्स कर देते हैं, तो उसमें भी आप जब गुड्स खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो हम डेबिट कर रहे हैं ना, इनपुट SGST इनपुट CGST आप डेबिट कर रहे हैं, और अगर आप उसको रिवर्स कर रहे हैं, परचेज को अगर आप क्रेडिट कर देते हैं, तो फिर वो इनपुट भी आपका क्रेडिट हो जाएगा। इज इट क्लियर? यानी कि वो खत्म हो जाएगा इन शॉर्ट। अब मान लीजिए कि अगर आपका ये आउटपुट जो था ये आपका 80 रुपीज़ का था, 80 रुपीज़ का आउटपुट हो रहा है, यानी कि हमें पेमेंट तो करना है 80 रुपीज़ का, और हम लोग परचेज के ट्रांजैक्शन पे 100 का पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दिस इज योर प्रीपेड एक्सपेंस, यानी कि हमने 20 रुपीज़ का एडवांस GST पे कर रखा है गवर्नमेंट को। कैसे? हमने हमारे इनपुट में से हमारे आउटपुट को एडजस्ट कराया, तो 20 रुपीज़ का बैलेंस बचा। दिस विल बी treated as your current asset in the name of prepaid expenses. Is it clear class? This was all about the topic that is goods and service tax. परचेज के टाइम पर आपको जो भी आप पे कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको एज एन एसेट यूज करेंगे बाय द नेम ऑफ इनपुट GST। स्टेट में होगा तो इनपुट CGST, इनपुट SGST। सेल के टाइम पर आपको टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना होता है, तो उसको हम लिखेंगे आउटपुट। उसके बाद में हमारे आउटपुट CGST को इनपुट CGST से एडजस्ट करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे करंट एसेट है या लाइबिलिटी है, ठीक है, और उसके बाद में हम लोग इनपुट SGST और आउटपुट SGST को आपस में एडजस्ट करा के देखेंगे कि करंट एसेट है या फिर करंट लाइबिलिटी है। अगर और पेमेंट करना है इट विल बी शोन एज करंट लाइबिलिटी, और अगर हम लोगों ने एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखा है यानी कि इनपुट ज़्यादा है, देन इट विल बी शोन एज योर प्रीपेड एक्सपेंस एज अ करंट एसेट इन द बैलेंस शीट। इज इट क्लियर क्लास? ऑलराइट, सो this was all about the total chapter, that is chapter number 22 as per the DKGOL financial statement with adjustments. I hope all the 22 adjustments have been clear to you. So stay home, stay safe. Thank you.